Welcome everyone. So I hope that you are keeping fine and you are doing great and your health and wealth, everything is going good. All right. So I hope that you are enjoying the lecture series presented by me on behalf of this platform. And believing that you are doing the homework that is given to you. In the previous chapter, we have covered a lot of information. Chapter number 5, that is water. And now you can see that how far we have come to this journey of our geography class 7th lecture series. We started with chapter number 1 discussing about the environment. हमने आपके chapter number 1 से शुरुआत करी थी जहां पर हमने environment के बारे में बात करी, right? Then slowly and gradually we moved ahead. हम धीरे धीरे आगे move करे. हम chapter number 2 पर आए and we started understanding about the interior of the earth. हम हमारे earth के interior के बारे में समझने लगे, right? Because अभी तक तो हम on the surface पढ़ते हुए आ रहे थे. Class 6 में भी आपने everything you have studied, what are the processes which are going on the earth surface, right? But now class 7th is something where you are studying about things which are also going inside the earth's surface. And it was really interesting for you to understand what is inside our earth. हमारी earth के अंदर क्या है, कौन कौन से processes हैं जो हमारे earth के अंदर देखने को मिलते हैं, right? With all those processes working, we are able to see the landforms that are visible to you over the earth's surface at present times. Okay. Then we moved ahead discussing for chapter number 3, that is our changing earth. And as I always say, it is important for you to keep on revising the things that we have done previously, because अगर आप previous lectures को connect नहीं करेंगे, if you are not able to recall them, आप आगे के lectures नहीं complete कर पाएंगे. Okay. It will be difficult for you to understand everything because everything has to be moved step by step. आप एकदम से सब चीजों को नहीं cover कर सकते हैं, ठीक है? Then chapter number 4 हम move करें. Then where we talked about air, हमने air के बारे में बात करी. Chapter number 5 we talked about water. So with this we have completed your major domains in detail. हम आपके जो major domains हैं, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, इन तीनों को हमें डिटेल्ड में कवर कर लिया है. ओके, लिथोस्फीयर इज योर द क्रस्टल सरफेस, जो आपका क्रस्ट होता है, उसको पूरा हमने डिटेल में समझा. इन द चैप्टर इनसाइड आर अर्थ, इन द चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ, जहां पर आपने क्रस्ट के बारे में बात करी. ओके, यू सॉ हाउ क्रस्टल सरफेस आपका कैसा होता है, कितना किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड होता है, कितना थिक होता है ये. ओशनिक क्रस्ट के बारे में बात करी थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हमने बात करी थी. ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू कैसे हमारे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे धीरे धीरे पूरा का पूरा एक कंबाइंड लैंडमास हुआ करता था जिसे हम पैंजिया बोलते थे. एंड दैट पैंजिया गॉट स्लोली ब्रोकन अप. वो लैंड धीरे 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 ब्रेक होता गया because of the endogenetic and the exogenetic forces that we completed in your chapter number 3. Chapter 3 are changing earth. हमने आपके दो forces के बारे में पढ़ा था, endogenetic, exogenetic forces, right? Then endogenetic forces, those forces working inside the earth, जहां पर हमने बात करी थी sudden and diastrophic forces. Sudden forces जो आपके very quick, very rapid changes लेकर के आ जाते हैं. Say for example earthquake, volcanic eruption, landslides, right? And then we also studied about the diastrophic, very slow, जो ऐसे forces हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, like the building of your mountains, mountain building का process. Okay. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमने आपके बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की बात करी थी, कैसे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. We moved ahead discussing about the atmosphere, composition of atmosphere, constituents of the atmosphere, layers of atmosphere के बारे में बात करी थी. If you remember, very important layer, troposphere, right? Then we moved ahead discussing about water, and water के बारे में हमने कुछ amazing facts पढ़े थे, that आपका brain, human brain में 75% water है. Okay, and also I asked you to download that application, Know Your Water. Since you are drinking it, you are using it every day, you should know about your water. Okay, so अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज आप उस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करिए. ऑल राइट.
Today we are beginning with this new chapter that is natural vegetation and wildlife. आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है natural vegetation and wildlife. Again, with this name, what you can understand is natural vegetation. Natural vegetation, something which is growing naturally, something which is not having any human interference, जिसमें कहीं भी human interference exist नहीं करता है, ये अपने आप grow करती है. Right? Okay. So let's begin with this chapter without wasting any time. I hope that you have your books and pencils with you. Please keep on marking whatever is being told to you. Keep on writing the questions whenever I just explain you. Usi time I tell you the questions, important questions which can come in your examinations. All right. So let's begin. Also, before beginning, I just want to make you remind that आप class 6 में भी एक topic करके आए हैं natural vegetation and wildlife का. So please ऐसा मत करिए कि आप उस topics को भूलते जा रहे हैं, because अगर आप भूल गए हैं तो एक बार please वापस से आप अपनी books उठाएं class 6 की, उसको revise कर ले, okay, so that it becomes easy for you to learn the thing, okay? All right. Salima was excited about the summer camp she was attending. All right, एक name है, एक girl है, उस girl का name है सलीमा. और सलीमा बहुत ज्यादा excited है क्योंकि अब summer camp लगा है. आप भी summer camps में जाते होंगे. You must have also joined summer camp sometimes. Okay, so she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh. Manali is a place. Manali एक place है. इस कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश एक हमारे यहाँ का स्टेट है इंडिया कंट्री का. ओके, along with her classmate, she recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. जैसे जैसे they were moving up, as the bus was climbing higher and higher, okay, she was able to see the changes in the vegetation. That means कि जब ये यहां से बस ने मूव करना स्टार्ट करा तब यहां पर आपको वेजिटेशन अलग दिखाई दी. जैसे जैसे ये बस आगे मूव करती जाती है, हर हाइट पर वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे थे. ठीक है. The deep jungles of the foothills comprising Sal and Teak slowly disappeared. So the deep jungles of the foothills, यानी कि जब बस यहाँ पर थी foothills पर, तब यहाँ पर उसे साल और टीक फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे, साल एंड टीक जंगल्स दिखाई दे रहे थे. लेकिन जैसे जैसे they started climbing up, as the bus started moving up to the higher latitude, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड पर बस ऊपर जाती गई, ओके, you see that साल एंड टीक that started slowly disappearing. ये जो आपके वेजिटेशन है, ये जो फॉरेस्ट थे, साल एंड टीक के जो पेड़ थे, वो दिखना बंद हो गए. फिर आपको एक नई वेजिटेशन देखने को मिलती है. ओके, सो इट हैपेंस, जैसे जैसे आप ग्राउंड से हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे आप प्लेन एरिया से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपकी नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं. ऑन द प्लेन एरियाज, at the foothills, on the ground, you will see that there is a different vegetation. वहां पर आपको एक अलग vegetation मिलेगी. On the other hand, as you started moving up, जैसे जैसे आप climb करते जाते हैं और ऊपर जाते जाते हैं, एक height पर आप पहुंच जाते हैं, हर height पर आपको अलग अलग trees मिलेंगे. You will see different vegetation. Okay, so she could see tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes. And now जब ये mountains के पास में पहुंच गई है तो यहाँ पर अब इसे कुछ ऐसे trees दिख रहे थे जिनकी leaves कैसी हैं, cone shaped leaves थी. कैसी leaves हैं? cone shaped leaves. ठीक है, the leaves were cone shaped. Okay, and also you see these are very thin. ये जो leaves हैं ये बहुत ही ज्यादा thin होती हैं, pointed होती हैं. Okay, this is the characteristic feature that you see on the mountains. ये mountains के features हैं. mountains पर आपको इसी तरह की vegetations मिलेंगी. आप class 6 में भी पढ़ के आए हैं mountainous vegetation, where आपने देखा था mountainous vegetation वहां पर आपको कैसे मिलती है, cone shaped leaves, right? She learned that those were coniferous trees. Okay, तो वहां पर
पहुंचने के बाद में उसे ये पता लगता है कि इन ट्रीज का एक नाम है, और इन ट्रीज का क्या नाम है, इन्हें बोला जाता है कॉनिफेरस ट्रीज. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज कॉनिफेरस ट्रीज. ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज मीन्स ऐसे ट्रीज जिनकी लीव्स कोन शेप्ड हैं, जिनकी लीव्स बहुत ज्यादा पॉइंटेड हैं, थिन हैं. ओके, इन्हें कॉनिफेरस ट्रीज बोला जाता है. शी नोटिस द ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज. दीज वर द these were your rhododendrons. ठीक है, from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. और जैसे जैसे सलीमा और आगे मूव करती गई, हायर रीजन में पहुंचने लगी, माउंटेन्स के क्लोज पहुंचने लगे, वहां पर उसे बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ ट्रीज, अलग अलग वेराइटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है. अब जब वो माउंटेन्स के पास में पहुंच गई है, रोहतांग पास के पास में पहुंच गई है, तो वहां पर उसे स्नो भी मिलती है. शी फाइंड्स स्नो एंड देयर शी फाइंड वेरी शॉर्ट ग्रासेस. ओके, फ्रॉम सलीमा's observations we summarize that there is a close relationship between height of the land and the character of the vegetation. So ये जो भी सलीमा के observations थे कि हम जब फुट हिल्स पर थे तो हमें वहां पर अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है, फिर हम जब माउंटेन्स के पास में पहुंच गए तो वहां पर हमें अलग वेजिटेशन मिल रही है, टॉल ट्रीज मिल रहे हैं, कोन टाइप लीव्स मिल रही हैं, वेरी थिन एंड पॉइंटेड लीव्स. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय सलीमा. और इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड and the character of the vegetations. With the change in height, the climate changes. जैसे जैसे आपके हाइट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है. प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा. With the change in height, the climate also changes. That means हाइट चेंज किस में आ रहा है? जैसे जैसे आप प्लेन एरिया से, ग्राउंड एरिया से माउंटेन्स के तरफ पहुंचते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स तक पहुंचते हैं, तो वैसे वैसे आपका क्लाइमेट में चेंज आने लगता है. से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द समर टाइम्स, जब आपके समर वेकेशंस होती हैं, तो इस समय आपने बहुत ऐसा देखा होगा दैट मोस्ट ऑफ द पीपल द विजिट टू द माउंटेनियस एरियाज, जहां पर कूल क्लाइमेट होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, लेकिन दे आर मूविंग to the colder regions during the summer. That means wherever they are living, वहां पर summers हैं, the temperatures are high at their place, and during the summers they are going to summer vacations, and summer vacations वो एक higher altitude regions में जाकर के रह रहे हैं. दैट मीन्स कि से फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, या आप कोई एमपी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये रीजन्स हैं जहां पर गर्मी बहुत तेज होती है. ठीक है, द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी हाई इन दीज रीजन्स. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, दीज पीपल, द पीपल ऑफ दीज एरियाज, ये हायर ऑल्टीट्यूड रीजन में मूव करते हैं. ज्यादातर आप देखेंगे लोग शिमला चले जाते हैं गर्मी में, मनाली घूमने जाते हैं. Either you will see that they go to Jammu and Kashmir. क्यों? Because वो थोड़े higher altitude पर located हैं, and since वो higher altitude पर located है, वो height पर located है, वहां पर temperature cool होता है. ओके, सो यहां से आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है एक, दैट जैसे जैसे हम हाइट्स पर मूव करने लगते हैं वहां पर टेम्परेचर आपको कूल लगेगा. यू विल सी दैट द टेम्परेचर कंडीशंस आर कूल. Okay, so the line says that with the change in height, the climate also changes, and that also changes the natural vegetation. So अगर आपकी height में changes आते हैं, तो आपकी height में changes आने की वजह से आपकी climate में भी change आएंगे. And since आपका climate change हो रहा है, तो इसकी वजह से जो vegetation है वो भी change होती है, because climate बहुत आपकी vegetation को affect करता है. क्लाइमेट इज अगेन टेम्परेचर कंडीशंस. आप फैक्टर्स पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर, राइट? आपने टेम्परेचर पढ़ा है, आपने मॉइस्चर पढ़ा है, एयर प्रेशर पढ़ा है. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड वेदर. ओके, सो क्लाइमेट एंड वेदर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपके वेजिटेशन को भी अफेक्ट करेंगे. अगर हायर टेम्परेचर्स हैं तो हायर टेम्परेचर वाले रीजन में जो वेजिटेशन होगी वो आपको सिर्फ वहीं मिलेगी. दैट इज स्पेसिफिक टू दी
हाई टेम्परेचर रीजन्स। ऑन दी अदर हैंड जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहां पर टेम्परेचर आपके बहुत कोल्ड है, वहां पर जो वेजिटेशन है वो वहीं मिलेगी। You won't find that vegetation coming down on the regions जहां पर high temperatures है। No, क्लियर। सो इक्वेटर जो है, इक्वेटर पर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सन हीट है, सन रेज डायरेक्ट है। तो वहां जो वेजिटेशन मिलेगी, दैट वेजिटेशन विल बी फाउंड ओनली ऑन दैट इक्वेटोरियल बेल्ट। जितने भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास में आती हैं, जितने भी कंट्रीज इक्वेटर पर लाई करते हैं, उन कंट्रीज में आपको इक्वेटर वाली ही वेजिटेशन मिलेंगी। वो वेजिटेशन इक्वेटर की प्रॉपर्टीज को अडेप्ट कर चुकी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो भी वेजिटेशन आपको पोलर रीजन से मिलती है, उसने पोलर रीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट कर लिया है। ओके, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर. It also depends on factors like slope and thickness of the soil. Not only temperature matters, not only moisture matters, but also बहुत सारे और भी factors होते हैं, like slope होता है, soil की thickness भी बहुत ज्यादा matter करती है। अगर थिन सॉइल है तो जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो आपके सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। देयरफॉर द थिकनेस ऑफ द सॉइल ऑल्सो मैटर्स. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. So इन factors में क्योंकि variation आता रहता है, ये factors constant नहीं है. These factors keep on changing every time. That is why जो आपकी natural vegetation है, natural vegetation में भी आपको variations देखने को मिलते हैं. Natural vegetation is generally classified into three broad categories. हम natural vegetation को तीन broad category में classify करते हैं. First is your forest, second is your grasslands, and third is your shrubs. Okay, so first है आपका forest, second है आपका grassland, and third is your shrubs. All right. Okay, so come to forest. Forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. So कौन से factors हैं जो forest की growth में affect करते हैं, या कौन से factors हैं जो forest की growth को support करते हैं? So these are your temperature and rainfall. So forest which grow where temperature and rainfall are plentiful, ऐसी जगह पर ये grow करते हैं जहां पर temperature and rainfall are plentiful. Rainfall plentiful means बहुत अच्छी बारिश होना. To support a tree cover, because a good rainfall is required for a good tree cover. अगर आपको dense forest चाहिए, बहुत घने जंगल चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत heavy rainfall होना जरूरी है. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. और इन factors पर depend होने की वजह से आपके डेंस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर कहीं भी अभी तक ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है. देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एनीवेयर. अभी तक आपने देखा कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करी गई हो? नहीं करी गई है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो वेजिटेशन है ये नेचुरली ग्रो करती है डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल कंडीशंस, द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट, नेचुरल फैक्टर्स. नाउ कम टू ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. तो ग्रासलैंड्स ऐसे रीजन्स में ग्रो करेंगे जहां पर कैसी रेनफॉल होगी? मॉडरेट रेनफॉल होगी. ओके, मॉडरेट रेनफॉल, ना तो बहुत तेज रेनफॉल ना बहुत कम रेनफॉल, बट यू विल सी दैट देयर आर मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स. ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर मॉडरेट रेनफॉल कंडीशंस होती है. सो इन दोज रीजन्स, इन दोज एरियाज यू विल फाइंड ग्रासलैंड. Shrubs, thorny shrubs and scrubs, they grow in the dry region. On the other hand, ऐसे बहुत सारे कंट्री में एरियाज हैं, रीजन्स हैं जहां पर रेनफॉल इज वेरी वेरी लेस. इट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर्स और इवन इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर्स. 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. ऐसे आपको एरियाज कहाँ मिलते हैं? Western part of Rajasthan. Okay, so we can say western part of our country or the western side of Rajasthan. Rajasthan जो state है, राजस्थान का western side जो है, that is actually your leeward side. Okay, वो leeward side है. तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, and that is why वहां पर आप देखेंगे कि thorny shrubs and scrubs grow करते हैं. Also the reason is वहां पर आपके इंडिया की बहुत great Indian desert present है, that is your Thar desert is also present. So desertic type of vegetation आपको वहां पर मिलेगी. Clear? All right. Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father.
Her father visited various places in the world. He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different part of different continent. So Salima जो है वो अपने फादर के साथ में इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है. आई होप दैट कभी अगर आप भी कहीं कोई प्लेस विजिट करें, सो प्लीज आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए. ओके, अपने पेरेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस को शेयर करिए, उनको बताइए कि हमने ये चीजें ऑब्जर्व करी. ओके, सो सिमिलरली नाउ व्हाट हैपेंस, सलीमा के जो फादर हैं वो भी विजिट करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी प्लेसेस ट्रैवल करी है, कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करा है, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसको बताते हैं कि मैंने भी बहुत सारी वेराइटी ऑब्जर्व करी है वेजिटेशन की. ही मेंशन्ड अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट्स, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मेनी मोर. तो उन्होंने बताया, क्या बताया सलीमा को, दैट सब पोलर रीजन्स में आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं. ओके, सब पोलर रीजन्स दैट इज योर पोल्स के नीचे वाले, ये अगर आपके पोलर रीजन्स हो गए, सो यहाँ पर दिस विल बी योर सब पोलर रीजन. इसे क्या बोला जाएगा, सब पोलर रीजन. ओके, so these will be your subpolar regions. So subpolar regions में यहाँ पर आपको coniferous trees मिलते हैं. ठीक है, here you will find the coniferous trees. All right, then you see that thorny bushes in the desert. Desert areas में आपको क्या मिलेंगे, thorny bushes देखने को मिलती है. ठीक है, then thick tropical hardwood forest in the humid region. ऐसे रीजन जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उन रीजन्स में आपको हार्डवुड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. उन रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलता है, हार्डवुड फॉरेस्ट देखने को मिलता है. ऑल राइट, सो ह्यूमिड रीजन्स कहाँ होंगे, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा. अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वो आपके बेसिकली ऐसे रीजन्स हैं जहां पर आपके टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं. सिंस इक्वेटर पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हैं, वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होगा. Since the rate of evaporation is high, humid regions, so you will see tropical hardwood forest. और इक्वेटर के आसपास वाले जो भी रीजन्स होते हैं उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. Salima realized the Himalayas have almost all the variety of the vegetation which one can see while moving from equator to the polar region. So Salima ने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल एरियाज पर जाते हैं या इक्वेटर से हम पोलर रीजन तक जाते हैं, तो आपको एक बहुत वाइड वेराइटी, वाइड वेरिएशंस देखने को मिलती है नेचुरल वेजिटेशन में. द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. सो यहां से ही आप लाइन को नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, दैट जो भी आपको नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं. ओके, let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. So आज हम आपके कुछ फॉरेस्ट में different type of vegetation discuss करने वाले हैं. We'll be discussing the different forests and we'll be discussing their specific features also. Okay, हम इनके कुछ specific features भी discuss करेंगे. And if you remember class 6 natural vegetation and wildlife, वहां पर भी हमने आपके ये टॉपिक्स डिस्कस करे हैं. ओके, ऑल राइट, सो कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट, आ जाइए आप फॉरेस्ट के टॉपिक पर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आज हम आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर करने वाले हैं. ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? ये आप सर्च करेंगे, यू विल सर्च दिस. ओके, सो यू शुड हैव सम क्यूरियोसिटी. आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. ओके, सो प्लीज डू सर्च इट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राजील में बहुत बहुत डेंस है. इन ब्राजील ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी वेरी डेंस, और इन्हें दुनिया का लंग्स बोला जाता है. व्हाट डू वी कॉल देम? दे आर कॉल्ड एज द लंग्स of the earth. All right, okay, so let's begin with tropical evergreen forest. These forests are also called as tropical rain forest. पहली चीज,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को और किस नाम से बोला जाता है? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों बोल रहे हैं इनको ट्रॉपिकल? बिकॉज ये आपके ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं। सो नाउ आई होप दैट यू नो कि ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं। आर यू क्लियर विद इट? ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे। ट्रॉपिक्स मींस योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच में जो आपका इक्वेटर आता है। आई जस्ट शो यू दैट डायग्राम। हम उसको मैप को एक वापस से एक it is very very important for you to know the important parallels of latitude. आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कवर करके आए हैं और ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है।